Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 7 Fractions, and this is the last lecture for this chapter, and today we will be solving exercise 7.6. In the last video, we learned how to add or subtract unlike fractions, and today we will be seeing some questions based on it only. So let's just start with the exercise. The first question is we have to solve the given fractions. So I have to add 2 by 3 and 1 by 7. Okay. So first I will convert both of them into like fractions by the means of equivalent fractions. So I have to find equivalent fractions for both of them with the same denominator, and then I will add them. So we all know that LCM of 7 and 3 is 21. So I will be finding equivalent fractions for both of them with denominator 21. So for 2 by 3, I will multiply both of them with 7. So that 2 into 7 is 14 and 3 into 7 is 21. Similarly for 1 by 7, I will multiply both of them with 3. So 1 into 3 is 3 and 7 into 3 is 21. So the numbers become 14 by 21 and 3 by 21, and now I will add them. So 14 by 21 plus 3 by 21, and 14 plus 3 is 17. So the answer is 17 by 21. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 by 10 प्लस 7 by 15. अगेन मैं इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30. LCM for 10 and 15 is 30. So for 3 by 10, I will multiply both of them with 3. 3 into 3 is 9 and 10 into 3 is 30. Similarly for 7 by 15, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 से. 7 into 2 is 14 and 15 into 2 is 30. So the question becomes 9 by 30 plus 14 by 30. And 14 plus 9 is 23. So the answer is 23 by 30. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 by 9 plus 2 by 7. अगेन 7 and 9 का एलसीएम लेंगे, विच इज 63. यस, 7 और 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 63 आएगा, विच इज द एलसीएम फॉर बोथ ऑफ देम. तो 4 by 9 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से. सो 4 into 7 is 28 and 9 into 7 is 63. सिमिलरली फॉर 2 by 7 मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 into 9 is 18 and 7 into 9 is 63. So the question becomes 28 by 63 plus 18 by 63. तो यहाँ पे हम सबसे पहले 28 plus 18 करेंगे, and denominator is 63, and 28 plus 18 is 46. So the answer is 46 by 63. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 by 7 plus 1 by 3. अगेन 7 और 3 का एलसीएम हमने देख रखा है लास्ट क्वेश्चन में ही, विच इज 21. सो 5 by 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 15 by 21, एंड सिमिलरली 1 by 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से. सो इट विल बिकम 7 by 21, और हमको इनको ऐड करना है. सो 15 by 21 प्लस 7 by 21. 15 plus 7 is 22. सो द आंसर इज 22 by 21. यस, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आप चाहे इम्प्रॉपर में लिखे या मिक्स में, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 2 by 5 plus 1 by 6. सो फॉर 5 and 6 द LCM इज correct, 30. So for 2 by 5, I will be multiplying it with 6, and 2 into 6 is 12, and 5 into 6 is 30. Similarly for 1 by 6, I will multiply both of them with 5. 1 into 5 is 5, and 6 into 5 is 30.
So the question becomes 12 by 30 plus 5 by 30 and 12 plus 5 is 17. So the answer is 17 by 30. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 4 by 5 प्लस 2 by 3. अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा. सो द एलसीएम फॉर 5 and 3 इज 15. सो आई विल कन्वर्ट बोथ ऑफ देम. तो 4 by 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से. सो 4 into 3 इज 12 and 5 into 3 is 15. Similarly for 2 by 3 मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से. So 2 into 5 is 10 and 3 into 5 is 15. So the question becomes 12 by 15 plus 10 by 15 and 12 plus 10 is 22. So the answer is 22 by 15. अगेन आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 3 by 4 minus 1 by 3. दिस टाइम आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 by 3 फ्रॉम 3 by 4, बट प्रोसेस सिमिलर है. सबसे पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में ही कन्वर्ट करेंगे. सो द एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज 12. तो 3 by 4 को कन्वर्ट करूंगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. So 3 into 3 is 9 and 4 into 3 is 12. Similarly 1 by 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से. So 1 into 4 is 4 and 3 into 4 is 12. ठीक है, तो the question becomes 9 by 12 minus 4 by 12. ठीक है, and it will be 9 minus 4 and common denominator 12 and 9 minus 4 is 5. So the answer becomes 5 by 12. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 5 by 6 minus 1 by 3. अगेन LCM of 3 and 6 is 6 only. तो 5 by 6 को मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 1 by 3 को चेंज करना पड़ेगा. मुझे इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 6. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से. सो 1 by 3 into 2 and 1 into 2 is 2 and 3 into 2 is 6. So the question becomes 5 by 6 minus 2 by 6, and this you all can do. 5 minus 2 is 3 and common denominator 6. So the answer is 3 by 6. आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मैं दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकता हूं. So it will become 1 by 2. The final answer is 1 by 2. नेक्स्ट देखते हैं. दिस टाइम आई हैव टू ऐड 3 फ्रैक्शंस. तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे. चाहे यहाँ पे 3, 4, 5 कितने भी फ्रैक्शंस हों, हमको सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकें. तो अगर आप देखिए कि 4, 3 and 2, अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 12 ओनली. तो मुझे तीनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है विथ डिनोमिनेटर 12. सो 2 by 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4. 2 into 4 is 8 and 3 into 4 is 12. Similarly for 3 by 4, I will be multiplying it with 3. 3 into 3 is 9 and 4 into 3 is 12. Again for 1 by 2, I will multiply both of them with 6. 1 into 6 is 6 and 2 into 6 is 12. So the fractions become 8 by 12, 9 by 12 and 6 by 12. अब मुझे क्या करना है? मुझे इन तीनों को सिंपली ऐड करना है. सो 8 by 12 प्लस 9 by 12 प्लस 6 by 12. So it will be 8 plus 9 plus 6 and common denominator 12 only. So 9 plus 6 is 15 and 15 plus 8 is 23. So the final answer is 23 by 12. Again आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. Again 3 fractions are there.
we will be finding the LCM for 2, 3 and 6. But you know that LCM for 2, 3 and 6 is 6 only. तो मुझे 1/6 को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मैं 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3 से. So 1 into 3 is 3 and 2 into 3 is 6. Similarly for 1/3, I will be multiplying both of them with 2. 1 into 2 is 2 and 3 into 2 is 6. So the question becomes 3/6 plus 2/6 and the third one as it is, which is 1/6. ठीक है, तो अब क्या करना है? 3 plus 2 plus 1 and common denominator 6 and 1 plus 2 plus 3 is 6 only. So the fraction becomes 6/6, which is nothing but complete 1. So the answer for this question is 1. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 1 1/3 प्लस 3 2/3. अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप कोई सी भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. हम यहाँ पे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ट्राई करते हैं. ठीक है, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 into 1 3 plus 1 4 and denominator as it is 3. So 1 1/3 is 4/3 and this is 3 into 3 is 9 and 9 plus 2 is 11 and denominator as it is. So these mixed fractions become 4/3 plus 11/3 and we can add these two very easily because these are already like fractions. So this will be 11 plus 4, which is 15 and common denominator 3 and 15/3. अब मैं इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ. So 3 से डिवाइड करेंगे तो this will be 5 and this will be 1 and 5/1 is nothing but complete 5. So 5 is the correct answer, right? Next देखते हैं. 4 2/3 प्लस 3 1/4. अब हम इनको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं जिसमें हम होल पार्ट को एक साथ रखते थे और मिक्स्ड पार्ट को एक साथ रखते थे. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 1/4. ठीक है, और इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँगा सो इट विल बिकम 4 प्लस 3 एंड 2/3 प्लस 1/4. 2/3 प्लस 1/4. ठीक है, अब आप देखिए 4 प्लस 3 इज 7 और इसमें मुझे क्या ऐड करना है? 2/3 प्लस 1/4. अब इन दोनों को मुझे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए LCM फॉर 3 and 4 इज 12. सो फर्स्ट आई विल कन्वर्ट बोथ ऑफ देम. 2/3 मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 से. सो 2 into 4 is 8 and 3 into 4 is 12. Similarly for 1/4, I will multiply it with 3. 1 into 3 is 3 and 4 into 3 is 12. ठीक है, तो क्या बना ये? 8/12 प्लस 3/12 which is 8 plus 3 that is 11 and denominator 12. So finally मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? 4 plus 3 7 हो चुका था यहाँ पे ऑलरेडी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस और फ्रैक्शंस का रिजल्ट क्या है? 11/12. सो इट इज़ 11/12 एंड दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको मैं डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ. सो दिस इज 7 11/12 विच इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 16/5 minus 7/5. Now I have to subtract 7/5 from 16/5. But both these are like fractions only. तो simply मैं numerators को subtract कर दूंगा. So it will become 16 minus 7. 16 minus 7 and common denominator 5. And 16 minus 7 is 9. And denominator is 5. So 9/5 is the फाइनल आंसर. ठीक है, यस आप इसको अगेन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. 4/3 माइनस 1/2. नाउ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 4/3 एंड बोथ दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. सो फर्स्ट आई विल कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, तो
LCM of 2 and 3 is 6. सो 4/3 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. 4 इंटू 2 इज 8 एंड 3 इंटू 2 इज 6. सिमिलरली 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से. 1 इंटू 3 इज 3 एंड 2 इंटू 3 इज 6. सो द क्वेश्चन बिकम्स 8/6 minus 3/6 and this will be 8 minus 3 and common denominator 6. 8 minus 3 is 5. So the final answer is 5/6. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सरिता bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ अ रिबन. तो सरिता एंड ललिता ने कुछ रिबन खरीदा. सरिता ने खरीदा 2/5 मीटर एंड ललिता ने खरीदा 3/4 मीटर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट. तो हमको टोटल लेंथ निकालनी है जो उन दोनों ने मिलके खरीदा है. तो हमको क्या करना है, जितना रिबन सरिता ने खरीदा एंड जितना रिबन ललिता ने खरीदा उन दोनों को सिंपली ऐड करना है. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 2/5 रिबन विच सरिता हैज़ बॉट उसको ऐड करना है हमको ललिता ने जितना रिबन खरीदा उसमें, विच इज 3/4. ठीक है. सो वी हैव टू ऐड 2/5 एंड 3/4. तो सबसे पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे एंड LCM फॉर 5 and 4 इज 20. ठीक है. सो आई विल कन्वर्ट 2/5 with denominator 20. So I have to multiply both of them with 4. 2 into 4 is 8 and 5 into 4 is 20. Similarly for 3/4, I will have to multiply both of them with 5. 3 into 5 is 15 and 4 into 5 is 20. ठीक है. तो अब मुझे क्या करना है, 8/20 प्लस 15/20. It will become 8 plus 15 and common denominator 20 only and 15 plus 8 is 23. ठीक है. तो दोनों ने मिलकर कितना रिबन खरीदा, 23/20. बट हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो रिबन की बात कर रहा है. तो कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, 23 को 20 से डिवाइड करना है. 20 into 1 is 20 एंड रिमाइंडर 3. सो हम कैसे लिखते थे, एक बार फिर से देख लेते हैं. क्वेशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. सो क्वेशेंट इज 1, रिमाइंडर इज 3 एंड डिवाइजर इज 20. तो दोनों ने मिलके 3/20 मीटर का रिबन खरीदा है, मतलब 1 मीटर्स एंड 3/20 मीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Naina was given 1/2 piece of cake and Najma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake that was given to both of them. तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ केक निकालना है जो कि इन दोनों को दिया गया है. अगेन हमको क्या करना है, सिंपली हमको इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है. तो मुझे किसको ऐड करना है, 1/2 एंड 1/3. ठीक है. स्टूडेंट्स, आप कोई सी भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. आप चाहें तो इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पहले, या फिर आप होल को अलग और फ्रैक्शंस को अलग ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 1/2 + 1 + 1/3. हमने मिक्स फ्रैक्शंस को ब्रेक कर लिया है. अब मैं होल को एक साथ ऐड करूँगा और फ्रैक्शंस को एक साथ ऐड. तो 1 + 1 is 2 and then I have to add 1/2 and 1/3. So for 1/2 and 1/3, I will have to find the LCM for 2 and 3, which is 6. The LCM for 2 and 3 is 6. So I will be converting both of them. 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से. So 1 into 3 is 3 and 2 into 3 is 6. Similarly, 1/3, I will multiply both of them with 2. 1 into 2 is 2 and 3 into 2 is 6. So this becomes 2/6. So the question becomes 2 plus 3/6
प्लस 2/6 and we all can add it. 3/6 plus 2/6 is 3 plus 2 5, so 5/6, so it becomes 2 plus 5/6 and this is a proper fraction. तो मैं इसको डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं. सो दिस इज 2 5/6. तो दोनों को मिला के इतना केक मिला. कितना? 2 5/6 केक मिला है दोनों लड़कियों को मिला के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव टू फिल इन द बॉक्सेस. स्टूडेंट्स, हम ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम उसी मेथड से करेंगे. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस -5/8 को इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट करेंगे. तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? दिस इज द बॉक्स विच इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/8. क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन का था तो इक्वल्स टू के उधर जाके एक प्लस साइन का हो जाएगा. तो अब मुझे क्या करना है? 1/4 प्लस 5/8. These are unlike fractions. I will convert them into like fractions first. So LCM of 4 and 8 is 8 only. तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस 1/4 को कन्वर्ट करना है. तो 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 से. So 1 into 2 is 2 and 4 into 2 is 8. So the question becomes 2/8 plus 5/8. And this you all can do. 2 plus 5 is 7. And common denominator 8. So the answer is 7/8. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. डैश -1/5 इज इक्वल्स टू 1/2. अगेन सेम अप्रोच हम फॉलो करेंगे. हम इसको उधर ले जाएंगे. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? दिस इज द फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/5. क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन का था तो वहाँ पे जाके ये प्लस साइन का हो जाएगा. तो अब मुझे क्या करना है? 1/2 एंड 1/5 को ऐड करना है. तो उसके लिए मुझे LCM चाहिएगा 2 and 5 का, विच इज़ 10. सो आई विल कन्वर्ट बोथ ऑफ देम. सो 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5 से. 1 into 5 is 5 and 2 into 5 is 10. Similarly for 1/5, I will multiply both of them with 2. 1 into 2 is 2 and 5 into 2 is 10. So the question now becomes 5/10 plus 2/10. And this is 5 plus 2, 7. Yes, correct. 7/10 is my answer. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 1/2 minus dash is equals to 1/6. Now students, I am subtracting this blank fraction from 1/2. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? क्योंकि मेरा आंसर का डिनोमिनेटर 6 है तो इस फ्रैक्शन को भी मैं डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा. तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? करेक्ट, 3 से. सो 1 into 3 is 3 and 2 into 3 is 6. सो 1/2 becomes 3/6. तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? 3/6 माइनस दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू 1/6. अब आप देखिए यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जो फ्रैक्शन में माइनस कर रहा हूँ उसका डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? 6. अब 3 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूँ कि मुझे 1 मिल जाए? करेक्ट, 2. 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1. तो मेरा आंसर क्या हुआ? 2/6. ठीक है, 1/2 माइनस 2/6 इज 1/6. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स. तो अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, मुझे इसको कंप्लीट करना है. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस लिखा है. लेफ्ट टू राइट में मुझे क्या करना है? प्लस. एंड टॉप टू बॉटम में मुझे क्या करना है? माइनस. तो एक करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा. ठीक है, सो फर्स्ट आई हैव टू ऐड 2/3 एंड 4/3. सो 2/3 4/3 बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस, हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो 2 + 4 इज 6. सो द आंसर इज 6/3. ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट टू राइट मुझे क्या करना है? ऐड करना है. तो 1/3 प्लस 2/3 अगेन लाइक फ्रैक्शंस हैं, मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगा. सो 1 + 2 इज 3 एंड कॉमन डिनोमिनेटर 3. सो द फ्रैक्शन इज 3/3. अब टॉप टू बॉटम में मुझे क्या करना है?
माइनस। और आप देखिए मैंने इन दोनों को फिल किया तो मुझे थर्ड लो के लिए भी फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन मिल गए यहाँ पे। ठीक है, अगेन 2/3 माइनस 1/3। इस बार मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बट दीज आर लाइक फ्रैक्शंस ओनली, तो मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को माइनस करूंगा। 2 - 1 इज 1 एंड कॉमन डिनोमिनेटर 3, सो द आंसर इज 1/3। सिमिलरली 4/3 माइनस 2/3, मुझे क्या करना है 4/3 माइनस 2/3, तो मैं क्या करूंगा 4 - 2 विच इज 2 एंड कॉमन डिनोमिनेटर 3, सो दिस इज 2/3। अगेन 6/3 माइनस 3/3, 6/3 माइनस 3/3, 6 - 3 is 3 and common denominator again 3, so this becomes 3/3। ठीक है, ये बॉक्स आपको क्लियर है। लेफ्ट टू राइट हमको क्या करना है, ऐड, और टॉप टू बॉटम हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे देखिए लास्ट मैंने टॉप टू बॉटम सब्ट्रैक्ट किया है तो लेफ्ट टू राइट अपने आप आंसर मैच करा है, मतलब 1/3 प्लस 2/3 इट इज इक्वल्स टू 3/3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमको लेफ्ट टू राइट क्या करना है, प्लस एंड टॉप टू बॉटम माइनस। तो स्टार्ट करते हैं 1/2 प्लस 1/3, तो सबसे पहले हमको 1/2 प्लस 1/3 करना है। अब इस बार यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले मैं इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूंगा। सो एलसीएम फॉर 2 and 3 इज 6, LCM फॉर 2 and 3 इज 6, तो 1/2 को मुझे कन्वर्ट करना है विथ डिनोमिनेटर 6, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। सो 1 × 3 इज 3 एंड 2 × 3 इज 6। सिमिलरली 1/3 को करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। सो 1 × 2 इज 2 एंड 3 × 2 इज 6। तो क्वेश्चन क्या बना मेरा, 3/6 प्लस 2/6 and 3 + 2 is 5. So the answer is 5/6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/3 प्लस 1/4। I have to add 1/3 and 1/4। अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉमन डिनोमिनेटर के लिए क्या चाहिए हमको, LCM, एंड LCM ऑफ 3 and 4 इज 12। तो मुझे डिनोमिनेटर 12 चाहिए, सो 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। सो 1 × 4 इज 4 एंड 3 × 4 इज 12। सिमिलरली 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। 1 × 3 इज 3 एंड 4 × 3 इज 12। सो द क्वेश्चन बिकम्स 4/12 प्लस 3/12 विच इज 7/12। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 7/12। अब टॉप टू बॉटम चलते हैं, मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1 by 1 हम इनको भी देखते हैं। सो 1/2 माइनस 1/3, यहाँ पे हमने 1/2 और 1/3 को ऐड किया था, 1/2 और 1/3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। अगेन LCM ऑफ 2 and 3 इज 6, तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से। सो 1 × 3 इज 3 एंड 2 × 3 इज 6। सिमिलरली फॉर 1/3 आई विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम विथ 2, सो 1 × 2 इज 2 एंड 3 × 2 इज 6। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। सो 3/6 माइनस 2/6 एंड 3 - 2 इज 1 एंड कॉमन डिनोमिनेटर 6, सो द आंसर इज 1/6। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा भी देखेंगे। 1/3 माइनस 1/4। अगेन यहाँ पे मैंने 1/3 एंड 1/4 को ऐड किया था, यहाँ पे मैं 1/3 एंड 1/4 को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो इन दोनों का LCM यू ऑल नो दैट इज 12, तो 1/3 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 × 4 इज 4 एंड 3 × 4 इज 12। सिमिलरली फॉर 1/4
I will have to multiply both of them with 3. So 1 into 3 is 3 and 4 into 3 is 12. So the question becomes 4 by 12 minus 3 by 12, and 4 minus 3 is 1, and common denominator 12. So this becomes 1 by 12. ठीक है. अब स्टूडेंट्स हमको लास्ट बॉक्स फिल करना है, तो हम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम एक बार लेफ्ट टू राइट से ट्राई करते हैं. तो लेफ्ट टू राइट में मुझे क्या करना है, 1/6 प्लस 1/12. अगेन मुझे इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 इज 12 ओनली. तो मुझे 1/12 को कुछ चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. सो 1 इंटू 2 इज 2 एंड 6 इंटू 2 इज 12. तो अब क्वेश्चन क्या बना, 2/12 प्लस 1/12 विच विल बी 3/12. और 3/12 को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1/4. तो फाइनल आंसर इज 1/4. ठीक है. अब स्टूडेंट्स एक बार हम टॉप बॉटम करके भी देखते हैं क्या ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है. अगर 5/6 माइनस 7/12 भी 1/4 आया, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. तो हम एक बार चेक करते हैं उससे भी. तो हमको क्या करना है, 5/6 माइनस 7/12. अगेन एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 इज 12, तो मुझे इसको चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. सो 5 इंटू 2 इज 10 एंड 6 इंटू 2 इज 12. सो द क्वेश्चन बिकम्स 10/12 माइनस 7/12, एंड 10 माइनस 7 इज 3. सो इट बिकम्स 3/12. अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 1/4, विच इज सेम एज दिस इज 1/4. ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरे सारे नंबर्स करेक्टली फिल्ड हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस. अब यहाँ पे सपोज एक पीस ऑफ वायर था मेरे पास, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 7/8 मीटर. तो वायर की टोटल लेंथ थी 7/8 मीटर. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इट ब्रोक इनटू 2 पीसेस. वो 2 पीसेस में ब्रेक हो गया. सपोज यहां से वो वायर ब्रेक हुआ है, तो ये एक पीस है और ये दूसरा पीस है. 1 पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग. सपोज हम इस पीस को ले लेते हैं, तो इसकी लेंथ क्या बोल रहा है वो, इट इज 1/4 मीटर लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस. तो अब मुझे अदर पीस की लेंथ बतानी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर टोटल वायर जो था वो 7/8 मीटर का था, वो 2 पीस में टूटा. अगर एक पीस 1/4 मीटर लॉन्ग का है और मुझे दूसरे पीस की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी टोटल लेंथ थी उसमें से एक पीस की लेंथ माइनस कर दूंगा, तो मुझे दूसरे पीस की लेंथ मिल जाएगी. ठीक है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व. तो टोटल लेंथ क्या है मेरी, 7/8, और एक पीस की लेंथ है 1/4. अगर इतनी लेंथ को मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितनी बची हुई लेंथ मिल जाएगी, जो कि सेकंड पीस की लेंथ है. तो मुझे 7/8 में से क्या माइनस करना है, 1/4. अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस, वी विल कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस, एंड एलसीएम ऑफ 4 and 8 is 8 only. So I won't change this 7/8. I will just change this 1/4 and multiply both of them with 2. So 1 into 2 is 2 and 4 into 2 is 8. So the question now becomes 7/8 minus 2/8. ठीक है, and 7 minus 2 is 5. So the answer is 5/8. That means the length of the second piece is 5/8 meters. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा सा विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं. सपोज दिस वॉज नंदिनीज हाउस. ठीक है, इट इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल.
अब हम ये मानते हैं कि ये नंदिनी का स्कूल था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नंदिनी के हाउस से स्कूल तक का डिस्टेंस वो कितना बोल रहा है, 9/10 किलोमीटर। मतलब दिस इज 9/10 फ्रॉम हर हाउस टू द स्कूल। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर। सो नंदिनी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन आफ्टर सम टाइम शी टुक अ बस। उसने कुछ देर बाद एक बस करी, कितने किलोमीटर्स के लिए, 1/2 किलोमीटर्स के लिए। इसका मतलब सपोज उसने यहाँ तक अगर वॉक किया और इस डिस्टेंस में उसने बस ली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना है, 1/2 किलोमीटर्स। हाउ फार डिड शी वॉक, तो हमको बताना है कि नंदिनी ने कितनी दूर तक वॉक किया। तो हम अगेन यहाँ पे देखिए कि दिस टोटल डिस्टेंस वॉज 9/10 और उसने बस कितने किलोमीटर्स के ले ली, 1/2। तो अगर टोटल डिस्टेंस में से मैं बस का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वो डिस्टेंस मिलेगा जो नंदिनी ने वॉक किया है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे टोटल डिस्टेंस विच इज़ 9/10, उसमें से मुझे बस का डिस्टेंस माइनस करना है विच इज़ 1/2। ठीक है, तो 9/10 माइनस 1/2 अनलाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो LCM ऑफ 2 and 10 इज 10 ओनली, तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर 1/2 मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। सो 1 into 5 इज 5 and 2 into 5 is 10. So the question now becomes 9/10 minus 5/10 and 9 minus 5 is 4 and denominator is 10. मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 2 से डिवाइड करके। So 4 divided by 2 is 2 and 10 divided by 2 is 5. So this is the final answer. हम क्या कहेंगे, नंदिनी हैज़ वॉक फॉर 2/5 किलोमीटर्स। ठीक है, 2/5 किलोमीटर्स इज द फाइनल आंसर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। आशा एंड सैमुअल दो लोग हैं, उनके पास बुक शेल्फ है सेम साइज के और वो बुक से भरे हुए हैं। ठीक है, आशा शेल्फ इज 5/6 फुल। आशा का शेल्फ कितना भरा हुआ है, 5/6 एंड सैमुअल्स शेल्फ इज 2/5 फुल और सैमुअल का शेल्फ कितना भरा हुआ है, 2/5। तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट वी हैव टू सॉल्व। तो आशा का शेल्फ कितना भरा हुआ है, 5/6 एंड सैमुअल का शेल्फ कितना भरा हुआ है, 2/5। ठीक है, तो अब क्या बताना है, हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो मुझे बताना है कि किसका बुक शेल्फ जो है ज़्यादा भरा हुआ है और कितने फ्रैक्शन से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनको कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के बुक शेल्फ की साइज़ सेम थी। अगर दोनों के बुक शेल्फ की साइज़ डिफरेंट होती तो मैं नहीं बता सकता था कि किसका बुक शेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे सिंपली दोनों को पहले कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे एंड टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट वी विल फाइंड द LCM ऑफ डिनोमिनेटर। सो LCM ऑफ 6 and 5 इज 30। तो मुझे दोनों को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है विथ डिनोमिनेटर 30। सो 5/6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। 5 into 5 इज 25 and 6 into 5 is 30. Similarly, for 2/5, I will multiply both of them with 6. 2 into 6 is 12 and 5 into 6 is 30. Now I can compare both of them. ठीक है, तो आशा का शेल्फ कितना भरा हुआ है, 25/30 एंड सैमुअल का शेल्फ कितना भरा हुआ है, 12/30। ठीक है, तो अब दोनों को देख के आप बता सकते हैं कि आशा का शेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है एंड 25 इज ग्रेटर देन 12। सो वी विल से आशाज बुक शेल्फ इज मोर फुल एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन से ज़्यादा भरा हुआ है, तो हमको इन दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो 25/30 माइनस 12/30 क्योंकि हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है।
ठीक है, हमको ये बताने के लिए कि कितना ज़्यादा भरा हुआ है आशा का शेल्फ। तो 25 माइनस 12 इज 13 एंड कॉमन डिनोमिनेटर 30। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आशाज बुक शेल्फ इज मोर फुल एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, विच इज 13/30। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयदेव टेक्स 1/5 minutes to walk across the school ground. राहुल टेक्स 7/4 minutes to do the same. तो दो लोग हैं, जयदेव एंड राहुल, एंड जयदेव 1/5 minutes लेता है स्कूल ग्राउंड का चक्कर लगाने में, एंड राहुल जो है वो 7/4 minutes लेता है स्कूल ग्राउंड का चक्कर लगाने में। तो हमको बताना है कि हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, कौन कम टाइम लेता है और कितना कम टाइम लेता है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। जयदेव टेक्स 1/5 minutes एंड राहुल टेक्स 7/4 minutes। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कंपेयर करने के लिए। सो 5 × 2 इज 10 + 1 इज 11 एंड कॉमन डिनोमिनेटर 5। तो जयदेव जो है वो 11/5 minutes लेता है एंड राहुल 7/4। अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, कंपेयर करने के लिए हमको इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो LCM ऑफ 5 and 4 इज 20। तो मुझे दोनों फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है विद डिनोमिनेटर 20। तो 11/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। सो 11 × 4 इज 44 एंड 5 × 4 इज 20। सिमिलरली फॉर राहुल 7/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। 7 × 5 इज 35 एंड 4 × 5 इज 20। ठीक है, तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या है, जयदेव जो है वो कितना टाइम लेता है, 44/20 एंड राहुल टेक्स 35/20। तो दोनों में से कम टाइम कौन ले रहा है, करेक्ट, राहुल, बिकॉज 35 इज लेस देन 44 एंड द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी कैन डायरेक्टली कंपेयर द न्यूमरेटर्स। सो राहुल टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, अगेन मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा। उससे मुझे क्या पता पड़ेगा कि राहुल कितना कम टाइम लेता है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 44/20 माइनस 35/20। सो दिस बिकम्स 44 माइनस 35 and common denominator 20 and 44 minus 35 is 9. So Rahul takes 9/20 minutes less than Jaydev. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ कि राहुल टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, 9/20। ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज एंड आवर चैप्टर ऑल्सो। In the next video, we will be starting with a new chapter. Till then, goodbye. See you in the next one.